सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किन्हीं कारणों के कारण, अपरिहार्य कारणों के कारण जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे पहले सेशन के, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो जो हमारा दूसरा सेशन, दूसरा सत्र था, उसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उनसे हमने आग्रह किया और उनका सेशन हम पहले करवा रहे हैं। तो सर हमारे साथ हैं और मैं अपनी सहयोगी भागेश्वरी मैम से आग्रह करूंगी कि वो उनका औपचारिक अभिनंदन करें। भागेश्वरी मैम। Good morning, everyone. It's time to initiate the first session and welcome Dr. Vinod Kumar Shanwal. Dr. Vinod Kumar Shanwal was the former head of the Department of Education and Training and is currently working in the Department of Education and Training at Gautam Buddha University. He has worked as an associate professor with Fiji National University and Guru Gobind Singh IP University. Sir has been awarded with the Postdoctoral Research Fellowship of ICMR, New Delhi. Sir is a recipient of prestigious awards like the Young Scientist Award, PB Bakshi Award, the ESDA Green Award, the Savitribai Phule Award, and the Jijabai Shikshak Samman 2023. His work has been published by various national and international media, including the Fiji Times. He has been the mentor for major research projects funded by ICSSR UGC. He has been a member of the Social Impact Assessment Team of Jewar International Airport as well as the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. He has contributed 4 books. One of them was published by the Nova Science Publishers, New York. He has delivered talks on topics like emotional intelligence, stress management, psychosocial issues, etc. He had been on the panel of renowned organizations like Nexus EQ, World Associate of Value Education, and IIS, MAS, etc. We welcome you, sir. And the theme on which sir is going to enrich us is epistemology in the... challenges in and opportunities in the Indian knowledge system. We welcome you once again, sir. Thank you very much, Dr. Bhageshwari. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate and compliment the organizers, the Honorable Vice Chancellor, Professor Dhananjay Joshi ji, Vice Chancellor, Delhi Teachers University, and the organizing committee, Dr. Sonal Manocha, Dr. Bhageshwari, Dr. Shini Vasist, Dr. Shweta, Dr. Trishla, and esteemed participants. Very good morning to one and all present here. It's really an honor and privilege to be with you on this occasion. So as the topic assigned to me is challenges and opportunities of IKS, Indian Knowledge System. When we are talking about Indian knowledge system, so सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर हमारे साथ हैं। अच्छा। और सर प्लीज 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। तो सर वीसी सर प्लीज ओवर टू यू। मार्गदर्शन नहीं, मैं आदरणीय मित्र हमारे विनोद शानवाल जी का DTU के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये सत्र बहुत रोचक होगा और मैं स्वयं इसमें उनके विचारों को सुनने के लिए ललायित था और इसीलिए मैंने सोनल को बोला कि मुझे एंट्री दीजिए। मैं वेट कर रहा था, सेशन में लॉग इन कर रहा था। तो बाकी प्लीज कंटिन्यू विनोद जी, आपके सत्र के बाद फिर मैं अपने विचार रखता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि
मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आपने एक इतने रोचक विषय को लेकर के ये शिक्षक उन्मुखीकरण और प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्वजन हैं जो अजीज मित्र हैं और बड़े विद्वान लोग हैं। तो उन लोगों को भी साधुवाद कि आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और ये आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसे हम यहाँ जो बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, और भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है, मैं थोड़ी सी बात पीछे लेकर के जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर इसको आगे बात करेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ज्ञान परंपरा की, कुछ लोग जिनको हम ज्ञानी तो कहते हैं, जैसे कबीर जी ज्ञानी थे, लेकिन लोग कहते पढ़े लिखे नहीं थे। जो हमें आलेख मिले उसमें पता चला कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो इतने ज्ञानी थे। अगर हम मीराबाई की बात करते हैं, उनके बारे में भी उनके ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो यह दो अलग अलग विषय की बात है। जहां हम ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ पर केवल एक लिखित ज्ञान या केवल विद्वान होना ही काफी नहीं है। जो लोग ज्ञानी थे, जो हमारी परंपरा में, जो हमारे सनातन सिस्टम में जो ज्ञानी लोग रहे, उनका भी एक अद्भुत योगदान है। क्योंकि जो हमारी बात है, जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, हमें बात करनी है सनातन की। सनातन ना नया है ना पुराना है, और रोज अपने आप को नया करता है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जो रूपक दिया जाता है, सामान्यतः वह नदी का रूपक दिया जाता है। और नदी का रूपक क्यों दिया जाता है कि नदी सदियों से बहती आ रही है, दिन रात बहती है, सुबह से शाम तक बहती है, और बहने के बाद उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जब नदी बहती है उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ना ही उसका स्वयं का कोई अपना लाभ है, लेकिन वो क्षण क्षण बहती है और पल पल बहती है, और जैसे जैसे वो बहती रहती है अपने आप को नया करती रहती है। क्योंकि एक क्षण पहले जो थी वो तो आगे जा चुकी है, और अब जो नई, जो एक क्षण पहले जो थी, एक पल जो पहले थी, वो गुजर गया है। और अब जो है, तो इसी तरह से हमारा जीवन भी हमेशा निरंतर चलता रहता है। क्योंकि क्षण भर पहले जो था वो तो चला गया है। और नदी का ये जो रूपक है, इसको हम ज्ञान और धर्म दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम ज्ञान की भी बात करते हैं, तो हम जीवन को भी मान करके चलते हैं कि जीवन हमारा अनंत है। इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक बार एक बड़े विद्वान महाराज, उनको स्वप्न आया कि स्वप्न में कोई दुश्मन की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है, और वो झाड़ियों में छिपते जा रहे हैं। छिपते छिपते दुश्मन की सेना है और वो झाड़ियों में छिपकर बैठे हैं। इस तरीके से उनको 2 दिन हो गए, भूखे प्यासे हैं, उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। तो उस समय उनको अचानक कहीं से कोई सूखा हुआ मांस का टुकड़ा दिखा, और विवशतावश उन्होंने वो मांस का टुकड़ा उठाया। जैसे ही वो मांस का टुकड़ा उन्होंने उठाया और खाने की कोशिश की, इतने में ही एक बाज आता है और उस मांस के टुकड़े को भी छीन करके ले जाता है। तो जैसे उनको वो बाज लेकर के जाता है उस मांस के टुकड़े को, तो उन्होंने इमीडिएटली उठ करके कहा, बाज ले गए। नौकर चाकर थे जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कोई बाज मेरा मांस का टुकड़ा ले गया और मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो उन्होंने कहा आप इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और आप इतनी टाइट सिक्योरिटी में हैं, चारों तरफ तो आपके सिक्योरिटी है, लोग आपके चारों तरफ खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसके बाद भी आपसे कोई कुछ कैसे ले जा सकता है? हम सब लोग तो हैं आपके यहाँ, आपकी सेवा में सब लोग हैं,
लेकिन कोई कैसे ले जा सकता है? तो उन्होंने उस बात के लिए अपने गुरु को बुलाया और गुरु से पूछा कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि ये जो मांस का टुकड़ा ले गई ये सत्य है कि अब जो मैं बैठा हूं ये सत्य है? तो उन्होंने कहा देखिए, ना वो सत्य था ना ये सत्य है, क्योंकि जिस समय आपने जिस समय आपसे वो मांस का टुकड़ा छीना उस समय आप क्या कर रहे थे? बोले जी मैं झाड़ियों में बैठा था। बोला नहीं, वैसे आप क्या कर रहे थे? बोला वैसे मैं सो रहा था। तो बोले आप नहीं सो रहे थे, आपका शरीर सो रहा था, क्योंकि अगर आप सो रहे होते तो आप देख ही नहीं पाते। तो आपका शरीर उस समय सो रहा था और अब ये जो आप वैभव देख रहे हैं ये आप जाग रहे हैं, क्योंकि आप राजा हैं तो आपके पास प्रजा है, आपके पास सब कुछ है, तो ये अब जाग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, आप जो देख रहे थे, आप सो रहे थे, मतलब आपका शरीर सो रहा था, लेकिन आपकी आत्मा ने वो देखा। तो जो आत्मा है वो निरंतर चलने वाली बात है और जीवन की कभी भी समाप्ति नहीं होती है, ये अनंत चलने वाला पदार्थ है। परंतु ना ये सत्य है ना वो सत्य है, क्योंकि ये वैभव, ये राजपाट, ये चीज भी हमेशा चलने वाली नहीं है, लेकिन आपका जीवन आगे तक चलेगा और अनंत तक चलेगा। इसीलिए धर्म को भी सनातन कहा गया है, क्योंकि जब हम धर्म की भी बात करते हैं तो उसको भी सनातन कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ वैदिक शब्द में एक शब्द आता है ऋत, और ऋत को ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ऋतु। अब जिस तरह से हम ऋतु की बात करते हैं, हमारी यहाँ जितनी भी ऋतुएं हैं वो अपने समय से आती हैं, समय से चलती हैं, उनके ऊपर किसी तरह का किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसी प्रकार जब हम बात नमिता मैडम अगर आप म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब हम ऋतु की बात करते हैं तो उसका मतलब है ऋतु से है। अब ऋतु की जब हम बात करते हैं तो उसमें जिस तरह से हमारी ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, हर ऋतु अपने समय से आती है और समय के बाद ही जाती है। कोई भी ऋतु समय से पहले नहीं आती है, ना ही पहले जाती है। तो वो एक निरंतर चलने वाली बात है। और जैसे तारे हैं, नक्षत्र है, पृथ्वी है, सभी के अपने एक नियम हैं, और ये जितने भी नियम हैं ये सब समष्टि के अंतर्निहित हैं। अब इनको कोई चला नहीं रहा है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए हम कोई क्रिया नहीं करते हैं, अपने आप पचता है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास को हम नहीं चलाते हैं, अपने आप चलता है। तो उसी प्रकार से जो ऋतु है वो भी अपने आप चलती है, और जो प्रकृति है वह भी अपने स्वधर्म में होती है। अब यहां पर यह बात करनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे पास 1835 में जिस समय मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आई, जो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था आई, और लगभग 180-85 वर्ष पहले वो व्यवस्था आई, उस शिक्षा व्यवस्था ने आने के बाद हमारे जो अपने जो लोग थे, जो इतने विद्वान पुरुष थे, इतने ग्रंथ थे हमारे पास, इतने वेद थे, उपनिषद थे, वेदांग थे, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, इसको कैसे परिवर्तित किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक शिक्षा पद्धति लेकर के आए। और जो शिक्षा पद्धति मैकाले लेकर के आए, उसके बाद से कुछ चीजें उस शिक्षा पद्धति में उन्होंने निकाली। कौन कौन सी शिक्षा पद्धति में चीजें उन्होंने निकाली? उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज उसमें से निकाली, वो निकाली हमारी संस्कृति को उन्होंने धीरे धीरे एक तरफ करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी अपनी जो भाषा है, हमारी अपनी भाषा को साइडलाइन करते हुए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, भारतीयों को शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? इंटरनेशनल लैंग्वेज में। इंटरनेशनल लैंग्वेज को उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी भाषा है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में ही शिक्षा देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा जो ग्रंथ इनके अपने हैं, भारतीय जो ग्रंथ हैं,
भारतीय ग्रंथ जो हमारा अपने जो साहित्य है, उस साहित्य को भी अगर ये पढ़ेंगे तब भी ये अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पहले तो हम अंग्रेजी में तो शिक्षा देंगे और अपने अपने मतलब जो अंग्रेजों के जो वेस्टर्न जो नॉलेज है वो इन लोगों को दी जाएगी। और जो वेस्टर्न नॉलेज जब हम इन लोगों को देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक और जो हमारी अपनी जो भाषा थी और जो हमारे जो अपने ग्रंथ थे उनको ना पढ़ा करके वेस्टर्न लिटरेचर को इन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। जब वेस्टर्न लिटरेचर की बात उसमें आगे आई तो उन्होंने क्या किया कि लोगों में एक डिवाइड एंड रूल का जैसे उनका एक फॉर्मूला था, एक पर्टिकुलर कैटेगरी लोगों की उन्होंने आइडेंटिफाई की और उस कैटेगरी को उन्होंने वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको वो बोल रहे थे अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू की। और जब उन्होंने वो अंग्रेजी शिक्षा उनको देनी शुरू की उसके बाद उन्होंने ये भी माना कि ये जो लोग हैं शरीर से, शक्ल से भारतीय हैं, लेकिन इनका जो मन है उसको इतना परिवर्तित किया जाए, इतना परिवर्तित कर दिया जाए कि ये लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से, अपने ज्ञान से विमुख होते चले जाएं। और जैसे जैसे ये लोग अपने संस्कृति से, ज्ञान से विमुख होते होते चले जाएंगे तो यही लोग अंग्रेजों के और जो अन्य भारतीय हैं उनके बीच में एक तालमेल का काम करेंगे। और इस तरीके से लोगों में दो कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की और उन लोगों को वो अपना खास लोग कहते रहे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे जो वेस्टर्न लिटरेचर है ये आना शुरू हुआ और जो हमारा अनंत अथाह जो ज्ञान था उससे लोग धीरे धीरे विमुख होने शुरू हो गए। यूएन की एक रिपोर्ट है, यूएनओ की, वो ये कहती है कि 46 संस्कृति थी, 46, जिनमें से मात्र एक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है ये बची है, बाकी 45 विलुप्त हो चुकी हैं, 45 खत्म हो चुकी हैं। इसको बचने का भी जो कारण है, उसके पीछे भी जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि उनके इतना सब करने के बावजूद भी लोग फिर भी अपने रूट से थोड़े बहुत जुड़े रहे और थोड़े बहुत जुड़े रहने से यहां तक पहुंच गए। अब इतने वर्षों के बाद जो हमें पढ़ाया गया, जो शिक्षा दी गई, आप लोगों को, हम लोगों को जो शिक्षा दी गई, उस शिक्षा में लोगों ने प्लूटो तो पढ़ा, प्लूटो के अलावा अरस्तु पढ़ा, लेकिन बाणभट्ट को नहीं पढ़ा और इसके अलावा जो ब्रीमिर को नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ जितनी भी खोज हुई, जितनी रिसर्च हुई, जितने इन्वेंशंस हुए, उनको नहीं पढ़ाया गया, बल्कि उन्होंने अपनी लिटरेचर को पढ़ाया। और अपनी लिटरेचर को पढ़ाने से क्या हुआ कि हमारे अपने लोग अपनी चीजों के बारे में कम जानकारी रखने लगे और उनकी चीजों के बारे में अधिक जानकारी रखने लगे। और धीरे धीरे कुछ लोगों को तो इसमें एक तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होने लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब वेस्ट का देन है। लेकिन अब 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में शिक्षा का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही गई है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आज के विषय से भी जुड़ी हुई है, उसको उन्होंने कहा गया है कि हमारे यहाँ जो 4.27, वैसे तो सारे ही चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन 4.27 नंबर पर उन्होंने कहा है नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया। तो इसमें जब उन्होंने कहा है कि नॉलेज ऑफ इंडिया, उसके बाद से अनेक ऐसे प्रयास होने शुरू हुए कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः पढ़ने, लिखने और समझने लगे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, करिकुलम इंटीग्रेशन की बात कही, उसमें स्किल की बात कही, कैपेसिटीज की बात कही। अब जो शिक्षा हमें दी गई थी, उस शिक्षा में प्रॉब्लम क्या थी कि वो केवल एक बुकिश नॉलेज तक सीमित रहा, ना उसमें किसी तरह का कोई एनालिटिकल स्किल था, ना उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग था, ना उसमें अन्य प्रकार की कोई चीजें थी। और बेसिकली लोग केवल डिग्री होल्डर तो बनते चले गए, लेकिन जो
एक विषय से दूसरा विषय और दूसरे विषय से तीसरा विषय, सब विषयों के बारे में जो जानकारी की बात थी, वो इंटीग्रेशन वाली बात उसमें कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। जिस तरह से हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन की, वो इंटीग्रेशन हमारा नहीं हो पाया और धीरे धीरे जो हमारे अपने जो कौशल थे, हमारे जो अपने जो स्किल थे, वो धीरे धीरे हमारे अपने कौशल और स्किल से लोग दूर होते चले गए। और आज के समय में जैसे हम बात करते हैं कि एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारी चीजों का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो उस बच्चे को नहीं होता है। और उस व्यवहारिक ज्ञान का पहले से ये सिस्टम बना हुआ था हमारे यहाँ। जब शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी, तो जैसे पहले भी हमारे यहाँ इसमें बाणभट्ट ने जो कादम्बरी में जो चर्चा करी है कि 46 कलाएं 46, अब वो कौशल की बात करी है कि किसी बच्चे को फिजिकल फिटनेस की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी बच्चे को सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी बच्चे को सोसाइटी में एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी भी बच्चे को एकेडमिक नॉलेज दी जाती थी, मैथमेटिक्स की नॉलेज दी जाती थी, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जाती थी। तो जो अन्य विषय हैं वो सारे महत्वपूर्ण विषयों की नॉलेज भी दी जाती थी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों का केवल जो शिक्षा से जो मतलब माना गया वो केवल एक लिमिटेड दायरे तक सीमित रह गया। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए भी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा कोशिश की। जिस तरह से कई जगह पर 2 फसलें या 2 फसलों के बीच में कोई एक अलग फसल जो पशुओं के लिए बोई जाती थी, जिससे कि जमीन को थोड़ा सा पोषक तत्व उस फसल से ही मिल जाए और हमारा भी काम हो जाए और हमारे जानवरों को लिए भी चारा मिल जाए। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले उन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या किया कि उन्होंने प्रकृति को एक तरीके से दोहन करने की कोशिश की। और जो अत्यधिक दोहन जो प्रकृति का किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज के समय में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पूरे के पूरे एरिया में वाटर लेवल बहुत कम हो गया। वाटर लेवल के अलावा जितनी पेस्टिसाइड्स डाली जाती हैं उससे जमीन खराब हो गई। जमीन खराब होने के बाद बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आ गई, खास करके कैंसर जैसी बीमारी। शुरुआत उन्होंने की, धीरे धीरे उसी पद्धति पर चीज आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई। और ये चीज इस तरीके से जो हमारा एक तरीके से जो प्रकृति के साथ जो हमारा तालमेल था, जैसे हमारे यहाँ 2-3 छोटे छोटे उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ इतना अच्छा तालमेल है, पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों का प्रोटेक्शन करना और हर चीज के साथ अपना एक तालमेल बैठा करके चलने की हमारी एक परंपरा जो रही, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी में उन लोगों ने एक कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करी। और अल्टीमेटली जो एजुकेशन का जो पर्पस था वो, जैसे हम बात करते थे पहले शिक्षा की, पहले विद्या की, विद्या से हम बात करते थे कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक रास्ता खोज रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो शिक्षा थी उसने केवल शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया और इसके अलावा उसका मतलब वही हुआ। तो जो हम बात करते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हमारे पुराने जो सनातन जो परंपरा थी, उसमें हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे, सर्वांगीण विकास की बात करते थे। वो सर्वांगीण विकास धीरे धीरे आते आते केवल एक एकेडमिक्स तक सीमित रह गया। दूसरी चीज जो हम बालक के अन्य पहलुओं की बात करते थे, वो धीरे धीरे आते आते कुछ जगह तक सीमित रह गया। और जो शिक्षा जिसकी हम बात करते थे कि किसी भी मनुष्य को पुरुषार्थ की श्रेणी में हम रखते थे या उसको अन्य संस्कृति के साथ जोड़ करके देखते थे, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि समय की सीमा है तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन उन सब के रहते हुए भी वो धीरे धीरे एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ चले गए और नतीजा ये हुआ कि लोगों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। और उन समस्याओं का नतीजा ये निकला कि अब आज के समय में जहां बात स्ट्रेस की होने लगी, तनाव की, बच्चों में तनाव की बड़ी समस्या होने लगी,
सुसाइड की समस्या आने लगी। और ये केवल एक देश की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ पर धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन इतना प्रभावी हो गया कि आज के समय में एक जो महत्वपूर्ण जो अंतर है हमारे अंदर, वो ये है कि हमारी जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें आपको कनेक्ट तो होगा आपको भूपेन जी, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। सर प्लीज। जी, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारा जो अंतर है वो ये है कि हम कलेक्टिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। हम केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें बात करते हैं कि पूरा का पूरा सब कुछ, यानी कि व्यष्टि से समष्टि तक सब कुछ ही तो हमारा अपना है। हम अपने से किसी भी चीज को अलग करके नहीं देखते हैं। परंतु जो वेस्टर्न जो थॉट है, उस वेस्टर्न थॉट की बात जो करते हैं वो बात करते हैं केवल इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की। और जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, उस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में एक इंडिविजुअल की जो प्रायोरिटीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। हम छोटी सी भी चीज होती है तो पूरे परिवार में मिलजुल के करते हैं, फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, सबके साथ मिलकर के करते हैं। हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो सबके साथ मिलकर के करते हैं। तो जो कलेक्टिविस्टिक अप्रोच से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की तरफ चले गए। अब शिक्षा का भी वही सिस्टम रहा, एजुकेशन को भी, शिक्षा को एजुकेशन बना दिया और उस एजुकेशन में भी ये चीजें इस तरीके से चली गई। तो हमारे यहाँ की जो कल्पना थी और हमारे यहाँ का जो व्यवस्थाएं थी वो एक अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो जैसे हम अपने यहाँ की जीडीपी की भी बात करें तो हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड से पहले पूरे विश्व की जो जीडीपी थी उसका लगभग 36% हिस्सा भारत का था। और भारत से मतलब वृद्ध भारत की बात मैं कर रहा हूं कि उस समय जो वृद्ध भारत था उसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब आज के समय में जो चैलेंजेस हैं, एग्रीकल्चर का एक चैलेंज आ गया, कॉमर्स का एक चैलेंज आ गया, कौशल का एक चैलेंज आ गया, ग्लोबल वार्मिंग का एक चैलेंज आ गया, टेररिज्म का एक चैलेंज आ गया और अनेक प्रकार के जो और छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं बची है। तो इस प्रकार से जो चीजें हमारे यहाँ चलती थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। अब इसमें दो चीजें मैं और आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो परंपरा रही उसमें प्रतिभा तो बहुत लोगों में है, लेकिन प्रतिभा से प्रज्ञा तक जाने की बात हम करते थे। और प्रज्ञा के लिए जो हमारे ऋषि मुनि संत जो होते थे उनकी बात हम करते थे। और प्रज्ञा से जब प्रतिभा से प्रज्ञा की ओर जाते थे तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो विषय रहता था वो होता था सत्य की निष्ठा, सत्य की निष्ठा और सत्य का अनुगमन। क्योंकि दुनिया में जितने भी क्रूर तानाशाह रहे, चाहे वो हिटलर है चाहे औरंगजेब है, उन लोगों में भी प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन प्रतिभा के साथ उन्होंने सत्य की निष्ठा और सत्य का अनुगमन नहीं था, इसलिए वो प्रतिभा से प्रज्ञा की ओर नहीं गए। और इसीलिए जो हम कोशिश करते हैं या जो हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि हम जब देवताओं की भी पूजा करते हैं तो उसमें केवल हम ये नहीं कहते बुद्धि दीजिए, उसमें हम बात करते हैं सद्बुद्धि दीजिए। तो सद्बुद्धि की जो हम बात करते हैं तो सद्बुद्धि से मतलब हमारा होता है कि हम ऐसी बुद्धि दीजिए जिसमें सत्य की निष्ठा हो, जिसमें सत्य का अनुगमन हो। इसीलिए हम बात करते हैं सद्बुद्धि की। और क्योंकि जो बुद्धि है वो तो केवल एक विषय तक सीमित है। दूसरी जो बात इसके अंदर है, जैसे रामचंद्र जी जब वहां से लंका से चले और लंका से जाने के बाद जब अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या में पहुंचने के बाद उनका राज तिलक हुआ
और उस समय जितने भी उनके सहयोगी थे, जिन सहयोगियों ने उनको विभिन्न प्रकार से मदद की, तो उन्होंने सबको अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद सबको कुछ ना कुछ उपहार धन्यवाद स्वरूप कहा दिए। और उसी समय जब वो ये उपहार दे रहे थे और सबको धन्यवाद दे रहे थे, उसी क्रम में उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। और जैसे हनुमान जी पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी, आपके तो इतने उपकार मेरे ऊपर हैं कि मैं आपको क्या उपहार दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने क्या किया, मेरा तो कोई काम ऐसा रहा ही नहीं जो मैंने कुछ किया हो। तो उस समय हनुमान जी कहते, प्रभु मैंने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिसके लिए मुझे कोई आप उपहार दें, लेकिन अगर आप उपहार भी देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में दृढ़ भक्ति दें। यहां पर भी अगर उन्होंने मांगा तो दृढ़ भक्ति मांगी, तो मतलब हमारे यहाँ की तो जो संस्कृति रही है वो इस प्रकार की संस्कृति रही है कि उसमें सत्य में निष्ठा की बात हो रही है। कि सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि जब हनुमान जी ने भी मांगा तो उन्होंने कहा, दृढ़ भक्ति आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि जहां तक बात हम करते हैं दृढ़ भक्ति की, अब जैसे उनका जो उपहार मांगने का जो तरीका था उसमें भी उन्होंने दृढ़ भक्ति की बात कही। तो हमारी जो परंपरा है वो इस प्रकार की परंपरा रही है, इस प्रकार की हमारी संस्कृति रही है। अब इसमें एक अंतिम जो विषय है उसको रखते हुए फिर आगे की बात करेंगे। जो हम बात करते हैं फिलोसफी की, फिलोसफी हमारा अपना शब्द नहीं है। फिलोसफी जो शब्द है उसमें हम बात करते तर्कपूर्ण व्याख्या। एक आदमी ने कोई तर्कपूर्ण व्याख्या की, यानी कि लॉजिकल कोई इंटरप्रिटेशन दिया, दूसरे ने उसका खंडन कर दिया, तीसरे ने दोबारा फिर कोई तर्कपूर्ण व्याख्या दी, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, फिर इसी तरीके से क्या हुआ कि अल्टीमेटली क्या होता है, ये तार्किक बुद्धिवाद के भीतर की बात रह गई। लेकिन हम बात फिलोसफी की नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो बात होती है, जैसे डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने कहा दर्शन के बारे में, कि जो हमारे जो दर्शन है, दर्शन में हम बात करते हैं सत्य की और ज्ञान के प्रकाश का अनुभव करने का। क्योंकि एक विशेष क्षण में लंबी साधना के बाद जो हमारी हम बात करते हैं, और खास तौर पर जब हम बात करते हैं कि हमारा दर्शन क्या है, दर्शन क्या होता है कि जब एक लंबी साधना करने के बाद और किसी अज्ञात कारणों से किसी ऋषि के समक्ष या किसी अवधूत के समक्ष या किसी योगी के समक्ष जब किसी प्रकार का ज्ञान प्रकाशित होता है, वो हम बात करते हैं दर्शन की। और फिलॉसफी में तो केवल एक तार्किक बात करते हैं, एक ने कहा दूसरे ने उसको खंडन कर दिया, तीसरे ने कुछ और कहा, अल्टीमेटली हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ दर्शन की जब हम बात करते हैं, बहुत लंबी साधना, किसी व्यक्ति ने अपने आप को दांव पर लगाया, अपने जीवन को दांव पर लगाया, उसके बाद लंबी तपस्या करी, एक लंबी साधना करी, और लंबी साधना करने के बाद किसी भी स्थान पर जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको दृष्टा मिला, तो उनको इस ज्ञान का जो दर्शन हुआ, जब उनको दृष्टा मिली, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का जब दर्शन हुआ, उसको हम दर्शन कहते हैं। और फिलॉसफी और दर्शन में बहुत अंतर है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत लंबी परंपरा रही है साधना की, और इस साधना में भी जैसे धीरे धीरे जब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने साधना करी, अब उसके अंदर भी फिर अलग अलग ज्ञान की परंपरा है, आर्ष की परंपरा है, अनार्ष की परंपरा है, और दृढ़ भक्ति की परंपरा तो हमने बात करी है। तो ये विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। अब हम आते हैं जिस काम की बात हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो ज्ञान परंपरा है, ज्ञान परंपरा तो बहुत लंबी ज्ञान परंपरा है। हमारे पास अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों हमारे पास, बल्कि सही मायने में तो देखा जाए तो जितने हमारे पास ग्रंथ हैं उसके 5 से 7% ही ग्रंथ का अब तक हम स्टडी कर पाए हैं। रिमेनिंग जो 94 और 95% है उसको तो अभी पढ़ना बाकी है। इतना अथाह सागर है हमारे पास ग्रंथों का।
अब जहां तक बात है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती हैं, देखिए सबसे पहली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके बारे में मेंशन किया गया है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा का कोर्स लगेगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा कि स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक हर विषय में जहां जहां पॉसिबल होगा भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाएगा। अगर इस भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाएगा तो अब हमारे पास कितने विद्वानों की आवश्यकता इसमें रहेगी, स्कूल लेवल पर रहेगी, कॉलेज लेवल पर रहेगी। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि जब हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पर जब इस चीज की आवश्यकता रहेगी, उसके बाद हमारे पास जो अन्य जो आवश्यकताएं रहेंगी वो रहेंगी कि क्या केवल एक ही भाषा में ये ज्ञान दिया जाए, क्योंकि उसमें दूसरी जो बात कही गई है शिक्षा नीति में वो ये कही गई है कि प्राइमरी तक अगर हो सके तो आप मिडिल लेवल तक आप क्या करेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में या उसकी मदर टंग में शिक्षा देंगे। तो जो ज्ञान हमारे पास है उसको ट्रांसलेशन का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को उसमें यह अवसर मिलेगा कि उस ज्ञान को वो ट्रांसलेट कर पाए। अच्छा, ट्रांसलेशन का भी उनको एक बड़ा मौका मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी चीज मुझे ध्यान आई, आमेर जो किला है जयपुर में, उस किले में आप लोगों ने भी देखा होगा, उस किले में कुछ इस प्रकार की आर्किटेक्ट है कि गर्मियों में कितनी भी भयंकर गर्मी हो उस किले में गर्मी नहीं लगती है। वो केवल एक आर्किटेक्ट का ही काम है, आर्किटेक्ट का ही एक नमूना है कि एक तरफ से नीचे से पानी बहता है, वहां से जो लू चलती है पानी के ऊपर आकर के वो ठंडी हवा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और किसी भी व्यक्ति को उसमें गर्मी नहीं लगती है। दूसरा क्या है कि एक साइड में उसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, वो सर्दी के लिए है। शीशे के ऊपर सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ता है, रिफ्लेक्शन वहां से पड़ करके दीवारों पर आता है, दीवारें गर्म हो जाती है और वो गर्मी में तो ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है। तो इस प्रकार के जो आर्किटेक्ट है, इस प्रकार के आर्किटेक्ट को, या हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितना आर्किटेक्ट है, खास करके हम लोग ज्यादातर लोग दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली में जिस तरह से कुतुब मीनार की जो बात हम करते हैं कि अभी तक कोई रस्ट नहीं मिला, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जंग अभी तक नहीं देखा गया है, जंग नहीं लगा। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं, उन प्रकार की धातुओं पर रिसर्च का मौका मिलेगा। जिस प्रकार की जो आर्किटेक्ट है उस प्रकार के आर्किटेक्ट में लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा जो भाषाएं जो चलेंगी उसके अंदर व्याकरण की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में भी जो अलग अलग, खास करके जैसे अभी हमारा जो अनाज है, अभी जैसे मिल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये केवल यहाँ की बात नहीं है, विदेशों में भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, विदेशी भी इसको एक तरीके से आजमा रहे हैं। जिस प्रकार से योग को विदेशी लोगों ने भी अपनाया है, उस प्रकार से उन एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ लैंग्वेज के लोगों की जरूरत पड़ेगी, योग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारे यहाँ जो हेल्थ के लिए, खास करके जब हम स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे यहाँ जो खान पान है, भोजन है, जो परंपराएं हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे लिटरेचर की और जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो लिटरेचर अभी हमारे पास है अधिकतर सूत्रों में है, उन सूत्रों का अनुवाद होगा, अनुवाद होने के बाद वो उन बच्चों के लेवल तक भी ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो एक बच्चा है वो उतने उस लेवल का अनुवाद समझ पाए या उस लेवल के सूत्र को समझ पाए। अब इसमें जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसमें भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, उन सब में फिर आवश्यकता रहेगी। और आज के समय में जो खास करके जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और टेररिज्म की वजह से दूसरे देश भी हमारी तरफ कुछ उम्मीद के नज़र से देख रहे हैं, कुछ उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी G20 में भी देखा है हमने, और अन्य प्रकार के
आयोजनों में भी हमने देखा है कि दुनिया की नजर, दुनिया की निगाहें अब भारत के ऊपर हैं, तो भारत से लोग लेने की उम्मीद कर रहे हैं। अब जब लोग लेने की उम्मीद करेंगे तो बहुत सारी ऐसी तकनीक हमारे पास है जो हम दे सकते हैं, बहुत सारी लिटरेचर ऐसी है जो हम उनके लिए बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामर की चीजें, खास करके जो व्याकरण है और जो पाणिनि का व्याकरण है, इसका तो आज तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया, उसके मुकाबले तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो अनेक प्रकार की ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ जिसके रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। लेकिन खास करके जैसे स्किल की बात है, हमने कभी भी चीजों को पेटेंट नहीं कराया, नीम को हमने कभी पेटेंट नहीं कराया, हम तो हजारों वर्षों से करते रहे। बहुत सारी चीजों को हमने, ज्ञान का हमने कहाँ कोई पेटेंट कराया है, क्योंकि हमारे पास तो ये एक जो ज्ञान है ये लगातार चलता आ रहा है। और अब जिस तरीके जो आर्किटेक्ट की हमने बात की है, हमारे यहाँ बहुत प्रकार के जो हेरिटेज हैं, उस हेरिटेज टूरिज्म की जो बात करेंगे, जैसे हमारे टेम्पल्स हैं, हमारे म्यूजियम्स हैं, जितने अलग अलग प्रकार की जो हमारे जो आर्किटेक्ट है उसको लोग स्टडी करने आएंगे, लोग टूरिज्म के लिए आएंगे। जब लोग टूरिज्म के लिए आएंगे तो उनको टूरिस्ट गाइड भी चाहिएंगे, उनको बाकी चीजें भी चाहिएंगे। जब वो लोग आएंगे तो उनको रहने की भी जरूरत पड़ेगी, उनको खाने की भी आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों में हमारा स्कोप है। इसके अलावा जहां तक बात हम इंडी क्राफ्ट की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं, बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं हमारी, जिन कलाओं से, और खास करके अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल एरिया में एक परिवार मात्र केवल टॉयज बनाने का काम करता था, और धीरे धीरे उस परिवार के ऊपर कुछ लोगों की नजर पड़ी, कुछ लोगों ने उनको थोड़ा मदद करके उसका थोड़ा मार्केटिंग तक पहुंचाया। मार्केटिंग तक पहुंचाने के बाद धीरे धीरे वो लोग इतने लाइमलाइट में आए कि उनको राष्ट्रपति इसी से अवार्ड भी मिला। अब उनको देख करके गांव की बहुत सारी अन्य लोग भी इस प्रकार के काम को दोबारा करने लगे। उन लोगों के एक रोजगार का अवसर हो गया। जो लोग उनकी मार्केटिंग करेंगे उनको मार्केटिंग का काम हो गया, जो उनका ट्रेड करेंगे उनका ट्रेडिंग का काम हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे एवेन्यूज हमारे पास हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करेंगे। जब डिजिटल कंटेंट में इस ज्ञान को कन्वर्ट करेंगे वो चलेगा। कुछ लोग इसमें राइट करेंगे, राइटर्स बनेंगे, कुछ इसके ऑथर्स बनेंगे, कुछ इसके फिक्शंस लिखेंगे, कुछ आर्टिस्ट हैं। जैसे हमारी जितने कौशल हैं, जितनी हमारी कलाएं हैं, वो केवल हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये सब आवश्यक चीजें हैं। अब जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें, ज्वेलरी में, यज्ञ में, अब जैसे कुछ चीजों को समय के साथ लोग जो है धीरे धीरे वो चीज बदलती चली गई। पहले तांबे का सिक्का होता था तो किसी भी पवित्र नदी में उसको डाला जाता था जिससे कि जल उससे शुद्ध रहे। अब वो लोहे का सिक्का डालने शुरू किया तो उससे क्या हुआ, तो ये जो उसके जो साइंटिफिक रीजन है, वो साइंटिफिक रीजन जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे या लोगों को, अपने यूथ को नहीं समझाएंगे, तब तक उनको वो साइंटिफिक रीजन समझ ही नहीं आएगा। अब जिस प्रकार से हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल है, हर फेस्टिवल का एक साइंटिफिक रीजन है। होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, नववर्ष क्यों मनाते हैं, नववर्ष कब मनाते हैं, ये सारी की सारी चीजों का एक साइंटिफिक रीजन है। बिना किसी साइंटिफिक रीजन के हम कोई भी फेस्टिवल या कोई भी त्योहार या कुछ भी नहीं मनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ अनेक प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, अनेक प्रकार के त्योहार हैं। अब इसमें एक जो चीज है, जैसे कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है वो धर्म और रिलीजियन में भी कंफ्यूजन रहता है। धर्म और रिलीजन एक नहीं है, एक धर्म के अंदर बहुत सारे रिलीजन हो सकते हैं। एक रिलीजन एक छोटा पार्ट है और जो धर्म है वो एक वृहद स्वरूप है। और जो हम बात करते हैं धर्म की,
धर्म के अलग अलग प्रकार से जिसको लोग धारण करते हैं, और धारण करने के साथ साथ उसमें सबके काम जो बटे हुए हैं, खास करके जो हमारे यूथ में एक जो समस्या आती है कि आई हैव सर्टेन ड्यूटीज, डेफिनेटली यू हैव, सॉरी, पीपल आर क्लेमिंग दैट आई हैव दिस राइट, दैट राइट, दिस माई राइट। राइट की तो बात करते हैं लेकिन ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। तो जो ड्यूटी की जो बात करते हैं वो धर्म की तो बात हो रही है। जैसे यहां पर एक बहुत छोटा सा जो प्रसंग है वो ये है कि एक दिन भरत जी की पत्नी, बल्कि प्रसंग सॉरी इस प्रकार है कि शत्रुघ्न जी की पत्नी छत पर टहल रही थी। उस समय उनकी माता ने देखा कि वो छत पर क्यों टहल रही है। उन्होंने कहा रात को तुम यहां क्यों टहल रही हो? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं इसलिए टहल रही हूं कि मेरे पति यहां नहीं है। तो बोले पति यहां नहीं, तो पति कहां गए? बोले वो भरत जी की सेवा में गए पर्णकुटी। अब भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी पर्णकुटी लगा के बैठे हैं। उनसे पूछा भाई आप यहां क्या कर रहे हो? बोले जी जब तक मेरे बड़े भाई वन में है तो मैं पर्णकुटी में रहूंगा, उसी प्रकार का मैं जीवन व्यतीत करूंगा। तो यहां पर जो बात कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें सेक्रीफाइस की भावना है। चार भाइयों में इस बात का जंग है, इस बात का युद्ध है, इस बात की लड़ाई है कि राजा कौन बने। इस बात की लड़ाई नहीं कि मैं बनूंगा। जिनको कहा जा रहा आप बनिए, वो कह रहे नहीं भाई साहब आप बनिए, भैया आपका हक है। बड़े वाले ने जब स्वीकार नहीं किया तो छोटे भाई ने भी मना कर दिया। एक भाई ने कहा नहीं मैं बड़े भाई की सेवा करूंगा, साथ जाऊंगा। तो यहां पर जो हम जिस संस्कृति की हम बात करते, हमारी वो संस्कृति है जिसमें सेक्रीफाइस की बात कही जाती है। दूसरे से लेने की बात हम कभी नहीं करते, दूसरे को हम देने की बात करते हैं। और हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, हमारे यहाँ इतना ध्यान रखा जाता है चीजों का कि छोटी छोटी चीजों को, जैसे नमक को बचाने के लिए, बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि नमक को जमीन पर नहीं गिराना है, अगर जमीन पर गिराएंगे तो उसको आंखों से चुनना होगा। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि नमक का कम से कम इस्तेमाल हो, उसका मिसयूज ना हो, वेस्ट ना हो, उसको कहने का हमारा एक तरीका अलग हुआ। उसी प्रकार से जनरली लोग जब नाखून काटते थे या बाकी जो काम करते तो कहते इसको किसी कागज में लपेट के फेंकना, ऐसा नहीं फेंकना। और उसका कारण क्या है कि अगर किसी चिड़िया ने, किसी पक्षी ने उसको उठा लिया और उसके गले में फंस गया, उसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम लोग तो प्रकृति से, अपने लोगों से, अपने पक्षियों से इतने जुड़े हुए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब इस प्रकार के जो हमारी संस्कृति रही, उस संस्कृति में धीरे धीरे, क्योंकि लगभग 200 साल होने जा रहे हैं, 180-85 साल बहुत लंबा समय होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम आया, उस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यूथ के माइंड सेट को भी काफी चेंज करने की कोशिश की। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति आज भी वहीं खड़ी हुई है, और धीरे धीरे वापस हम पुनर्जागरण की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए जहां तक इसमें अवसरों की बात है, अवसरों की कोई कमी किसी भी प्रकार की नहीं है। अनेक प्रकार के अवसर हमारे पास इस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए खुले हुए हैं। और क्योंकि इसमें केवल एक रिसर्च की बात नहीं होगी, रिसर्च के बाद फिर बाकी भी चीजें रहेंगी, और इसके अंदर जैसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई है, हमारे लिटरेचर से जुड़ी हुई है, हमारे कृषि से जुड़ी हुई है, ट्रेड से जुड़ी हुई है, कॉमर्स से जुड़ी हुई है, हमारे यज्ञ पद्धति यानी कि पूजा पाठ की जो पद्धति है। तो अनेक प्रकार की जो चीजें हैं, हमारे जो आर्ट है, क्राफ्ट है, डिजाइन है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो हमारे पास कोई एक जगह नहीं है या एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास अनेक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं। वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज विद दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेकों प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस,
चैलेंजेस तो देखिए, हर चीज जब नई, कोई चीज नई का मतलब नई तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से दोबारा से हम इसको समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात ईमानदारी से करूं तो मैंने भी वही शिक्षा ली है जो मुझे पढ़ाया गया, और जो मुझे पढ़ाया गया उस शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मुझे नहीं पढ़ाया गया। जो थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी मिली वो मुझे अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से या समाज के लोगों से मुझे मिली। इसके अलावा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पढ़ाया गया। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब धीरे धीरे क्योंकि दोबारा से ये सारी की सारी चीजों को किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा, सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा, सभी डिसिप्लिन्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा, विषयों में इसको इंक्लूड किया जाएगा। और दो विभिन्न जो सेंटर की जहां तक बात है, एक सेंटर है हिंदू स्टडीज का। अब हिंदू को धर्म की बात नहीं हो रही है, अब हिंदू स्टडीज का जो है वो एक पद्धति की बात, एक संस्कृति की बात है। तो उसका भी सेंटर खुल रहा है और ज्यादातर जगह पे खुल चुका है। जैसे आप लोग तो आजकल नेट से सब चीजें दिख जाती हैं। दूसरी जो चीज है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जब सभी यूनिवर्सिटीज में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ये सब चीजें रहेंगी, इसमें रिसर्च भी रहेगी, इसमें स्कूल लेवल पर भी रहेगा, हायर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी लेवल, और आम जनमानस के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। जहां तक बात है इसके चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में कुछ लिमिटेशंस रहेंगी डेफिनेटली, कि इतने कम समय में इतने अधिक लोगों को एक साथ ज्ञान देने के लिए हमें कुछ भाषाओं को जानकार होना, भाषाओं को सीखना, क्योंकि भाषा को सीखना केवल मात्र जानने के लिए नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी हम बात करते हैं, श्लोक की भी बात करते हैं, अब श्लोक को सही से उच्चारण करना, उसको सही से मंत्र को पढ़ना, वो सारी की सारी चीजें जरूरी हैं। तो उतने लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना। उसके बाद कुछ लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि इतने सालों से लोग अंग्रेजी में पढ़ते आए, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते आए, तो उनको हिंदी में पढ़ना, और खास करके जो भी हमारा लिटरेचर है वो संस्कृत में है, और संस्कृत से उसको सही ट्रांसलेट करना, और ट्रांसलेट करके उसको सही प्रेजेंट करना और सही लेवल तक पहुंचना, इसमें एक समय लगने की बात है। दूसरी चीज, इतने अधिक विद्वान अभी नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होने जैसी कोई बात है, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से, जिस तरीके से आज आप लोगों ने कितना अच्छा आयोजन किया, इस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय भी इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। इतने अच्छे श्रोता जो आज हैं, ये सब श्रोता बहुत विद्वान लोग हैं। ये कहीं इस तरह की चीजों को आगे और बढ़ाएंगे, और लोग और आगे बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली ये मासिस तक पहुंचेगा, और मासिस तक पहुंचेगा तो चीजें धीरे धीरे और आगे निकलेंगी। तो आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, आप सबका बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से माननीय कुलपति महोदय का कि आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया। सभी का बहुत बहुत आभार। अगर कुछ प्रश्न मैं अपनी अल्प बुद्धि से अगर कुछ जवाब दे पाया तो कोशिश करूंगा। सर मैनी थैंक्स। आपका सपोर्ट काफ़ी रहा। लास्ट मोमेंट पे हमने आपको कांटेक्ट किया एंड यू हैव सपोर्टेड अस रियली वेल। बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, मैं आपकी कुछ बातें जो है उनको दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, जो काफ़ी नॉलेजेबल रही हमारे लिए। आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स शेयर करी जो कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के ना प्रमोट होने की वजह से हमारी सोसाइटी में आई है, और कैसे ये प्रॉब्लम्स जो हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग रही हैं, इससे हमारी जो एक ज्ञान की प्रणाली थी उसको प्रमोशन नहीं मिला और हम उसको अपनी शिक्षा में इम्प्लाई नहीं कर पाए, और कैसे वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम ने इसका और खंडन किया। बट कहीं ना कहीं NEP 2020 जो है ये हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम का पुनर्जागरण जो कर रही है, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसके अंतर्गत हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम रिसर्च कर सकते हैं आर्किटेक्चर में, एग्रीकल्चर में, लिटरेचर में, ट्रांसलेशन में, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व तक लेके जाने के लिए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। बट ये सेशन खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा समय का थोड़ा और सदुपयोग करेंगे और एक सवाल लेंगे जो मीनाक्षी महलावत जी ने पूछा है। उन्होंने कहा है, आवर कंट्री वाज अ सस्टेनेबल सोसाइटी सिंस द वैदिक टाइम्स, बट विद द वेस्टर्नाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन एंड फास्ट डेवलपमेंट, हाउ कैन वी इंस्टिल द ओल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स इन द सिटीजन्स? सर, आप अपने कुछ विचार इस पे जी शेयर करना चाहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद, आपने बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा है। देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। जब हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो सोसाइटी में भी इस चीज को, जैसे अभी बात हुई ना कि अल्टीमेटली जब ये मासिस तक पहुंचेगा तो हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। और जीवन पद्धति में जब परिवर्तन की आवश्यकता है तो धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जैसे आज के समय में खास करके आप इस बात को देखिए कि अभी जो हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज खाने की बात, हमारे यहाँ पहले मोटा अनाज था, धीरे धीरे इतने वर्षों के बाद लोग फिर वापस मोटे अनाज की तरफ जाने लगे। और केवल हम ही लोग नहीं जाने लगे, विदेशी लोग भी जाने लगे। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ योग की हमारे यहाँ पद्धति रही, हमारे योग से पूरा विश्व भर में फायदा हो रहा, लोग उसको मानने लगे। हमारे यहाँ संस्कृत है, संस्कृत से कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेज बनने लगी, उसको केवल यहाँ की बजाय विदेशी भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे। तो धीरे धीरे देखिए एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। और जो, क्योंकि देखिए समय लगेगा, लगभग 200 वर्ष हो गए, तो 200 वर्ष के बाद जब हम वापस आएंगे धीरे धीरे, देखिए एक पुनर्जागरण की अवस्था है। जिस तरह लोगों को जानकारी मिल रही है एक दूसरे माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से, तो धीरे धीरे हम बातों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि जैसे घरों में भी हम लोगों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी धीरे धीरे हमने पढ़ाना शुरू किया है। क्या बताना शुरू किया है? कम से कम सुबह जल्दी उठो, उठ करके क्या करना है, क्या भोजन करना है, क्या जंक फूड खाना है कि नहीं खाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम जो शुरू कर दिए हैं ये कहीं ना कहीं इफेक्ट लाएंगी। और धीरे धीरे लोग इसको समझ भी रहे हैं, बच्चे भी इस बात को समझ रहे हैं। तो समय थोड़ा लगेगा बट अल्टीमेटली वी विल डेफिनेटली कम बैक और इससे कहीं अधिक ताकत से वापस आएंगे। और सर मुझे लगता है थोड़ा इवॉल्व, मतलब पढ़ाने का तरीका भी इवॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस बारे में आपने बड़ा अच्छी बात कही। हमारे कुछ जो पेडागोजिकल जो स्किल्स हैं जी, उसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और दो जो महत्वपूर्ण बात इस बारे में है, अगर हमारा अभी तक हम क्या करते रहे हैं, अधिकतर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोग कि जो कंटेंट मिला उस कंटेंट को पढ़ा दिया, लेकिन हमने केवल विषय को पढ़ाया, बच्चे को नहीं पढ़ाया, ना बच्चे को पढ़ा ना बच्चे को पढ़ाया। लेकिन अब हमें थोड़ी सी कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जब हम कंटेंट पढ़ाने के लिए जाएं उससे पहले 5 मिनट या 10 मिनट हम बच्चे को भी पढ़ें और फिर बच्चे को पढ़ाएं। क्योंकि जो हमारा जो बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन है, बच्चे के साथ जो हमारा एक ट्रांजैक्शन है, उसको भी कंटिन्यू करना है। अभी तो गए, क्लास ली, जो कंटेंट मिला उसको अपने तरीके से पढ़ाया, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें आवश्यकता है कि हम अपना जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं उसको भी थोड़ा सा चेंज करें। और इसीलिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही गई है। और एक बात मैंने भी कही अपने इसमें व्याख्यान में कि जब हम बात करते कबीर की, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उसके बाद उनका ज्ञान आज तक हम पढ़ रहे हैं। मीराबाई की जो भक्ति थी वो हम आज तक बात करते हैं। तो पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना एक अलग विषय और ज्ञानी होना एक अलग विषय है। यस सर। विद्वान ज्ञानी होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्ञानी डेफिनेटली ज्ञानी है, इस बात की गारंटी है। तो हमें अपना पेडागोजिकल स्किल्स में भी थोड़ा सा चेंज धीरे धीरे लाना पड़ेगा। और खासतौर पर स्टोरी टेलिंग वाली जो बात है, जो बहुत सारी चीजें जो हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग से सिखाते थे, और जो एक और जो चीज है, खास करके जो हमारे जो जॉइंट फैमिलीज थे, बाय वन और अनदर रीजन जॉइंट फैमिलीज आर ब्रोकन इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। तो जो परिवार में रहने के साथ बच्चे को जो एडजस्टमेंट आता था, चीजों को शेयर करना आता था,
जो अपने बड़े बुजुर्गों के जो एक्सपीरियंसेस सुनने से जो ज्ञान मिलता था, उससे बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वंचित हैं। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि ये जो इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल है, या जो इंडिविजुअल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनको भी थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हम ज्वाइंट फैमिलीज में रहें, तो जो हमारे जो संस्कार, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, जो संस्कार बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि उसको देने वाला नहीं है। और जनरली क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वर्किंग है, बच्चे को क्या करते हैं, या तो वो क्रच में रहता है या मेड के साथ रहता है। इसीलिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज और बात कही गई है, वो कही गई है बाल वाटिका की। कि बच्चा बाल वाटिका में क्या करेगा कि वो ग्रुप में सीखेगा। एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी चीज है। अक्सर घरों में एक और समस्या है कि सिंगल चाइल्ड, जहां सिंगल चाइल्ड है, वो चीजें आसानी से शेयर नहीं करता दूसरे बच्चे के साथ। दूसरा बच्चा आ जाए तो उसको अपने रूम में बैठने नहीं देता है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की तरफ बच्चा जा रहा है, खास करके वही वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ वो अग्रसर है। और हमारा क्योंकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी रही है, तो हम तो बात सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं, और एक दूसरे का, जैसे हमारे तो पूरी कहावत क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं भूखा न साधु जाए। मतलब इतना जरूर मिल जाए कि मुझे भी मिले और साधु भूखा नहीं जाए। हम तो हमेशा कलेक्टिविस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। हमने कभी स्टोर करने की बात ही नहीं करी, कभी होर्डिंग की बात नहीं करी। तो हमारी सोसाइटी में ये जो चीजें हैं ना, धीरे धीरे हमें पेडागोजिकल स्किल्स में भी इनको लाना पड़ेगा। और सर इसलिए भी कि जो बच्चे हैं वो हमारी पुरानी जो सोच है उसको रूढ़िवादी ना नाम दे दें कि ये तो नहीं, रूढ़िवादी नहीं है, वो रूढ़िवादिता नहीं है, नहीं है, बट बच्चों को जब हम सिखाएं तो उन्हें ऐसा ना लगे, क्योंकि अभी जो जनरेशन है, लाइक जो हमसे 10 साल छोटी है, जो अभी यूथ है, मतलब जो आगे 20 साल के जो बच्चे हैं, अगर उनको हम ये नमक वाला एग्जाम्पल जो आपने दिया, जो कि बहुत अच्छा है, हमारे दादा दादी पेरेंट्स यही बताते थे हमें कि नमक को बचाओ, सेव करो। बट अगर मैं अब जो बच्चों को ये बताऊंगी तो वो बोलेंगे कि मैम क्या ही, मतलब हंसेंगे मुझ पे। तो थोड़ा बताने का तरीका उनको हमें थोड़ा सा, देखिए ये तो रहता ना, देखिए हमें ना कुछ मैंने कहा ना, पेडागोजिकल स्किल्स हमें थोड़े से इंप्रूव करने पड़ेंगे, कुछ चेंज करना पड़ेगा, और उनको ना ये थोड़ा सा दिखाना भी पड़ेगा, खास करके जहां जो स्कैर्सिटी जिस चीज की है, उनको वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ करके दिखाना पड़ेगा, उनके विजिट्स कराने पड़ेंगे कुछ जगह पर जा करके, तो धीरे धीरे ये बात समझ आती है। जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं, हाँ, सेक्रेड था वो, हम लोग उनको उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है ना। 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है हमको, 24 घंटे जब ऑक्सीजन मिलेगी तो पूजा क्यों नहीं करेंगे? तो दोनों चीजें हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि हम प्रकृति से अपने आप को जोड़ करके चल रहे हैं, कि हमें ऑक्सीजन जहां से मिल रही है तो हम प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसको इसलिए धर्म से भी जोड़ा गया है कि भाई पीपल को जो काटेगा उसको पाप लगेगा। कंजर्व करना चाहते थे पहले के लोग, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि हमें पता है कि हमें जरूरत पड़ेगी, तो छाया के साथ साथ ऑक्सीजन मिल रही है, आपको सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये चीजें जरूरी है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर करी, और कहीं ना कहीं आपकी बात में एक छोटी सी मैं भी बात ये जोड़ना चाहूंगी कि जब हमें कहीं ना कहीं वैलिडेशन मिल जाता है वेस्ट का, जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की चीजें वहां यूज होनी शुरू हो जाती हैं, तब हम जाके उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं और उसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अब विश्व वो चीजें कर रहा है, जबकि हमारे पास खुद ही काफी ज्ञान का भंडार है, और हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपनी चीजों को भी आगे प्रमोट करें। सर, अगर आपका समय अलाउ करे तो एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे, नहीं तो हम ये सेशन अभी क्लोज करते हैं। ये माननीय चांद भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ कमेंट्स देना चाहूंगा। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से वो रिवर की जो एग्जाम्पल दिया कि नवो नवो भवति, तो इस ज्ञान के साथ में हम सब लोग जितने भी विद्वान यहाँ हैं, वो आपकी संबोधन से ये सब जानेंगे कि कुछ नया और भी करना है, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से बच्चों को बता पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य किया है आपने, और बहुत सुंदर तरीके से बयान किया, और संतों को बयान किया आपने। कबीर को कहा कि भाई वो किस प्रकार से जानते थे, तो कितना सुंदर विषय आपने टेकअप किया। मीरा को, कबीर को आपने लिया साथ में, और कैसे उन लोगों ने उसको आसान करके समझाया।
कि जैसे कि एक पंजाबी में एक लाइन आती है, रब दा की पावना इधरों पुटना ते इधर लावना, कि कितना आप इस ध्यान को अगर आप उसकी तरफ लगा देंगे तो आप उसको जान जाएंगे। आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होगा और बहुत सारे नए नए आयाम हमारे खुलेंगे। आई एम सो श्योर कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी है इसके माध्यम से हम लोग बहुत नए नए किस्म की चीजें इस पद्धति में अध्ययन के लिए हम जोड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्पीकर सर। मैं अपनी डीटीयू टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, चेतना मैडम शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक कभी आपका प्रश्न शायद को बचा है, अगर आप लेना चाहें सर तो हम ये सवाल ले लेते हैं। नहीं, मुझे भी कुछ फायदा ही होगा मैडम। चेतना जी, आप अपना सवाल पूछना चाहेंगी? हेलो जी मैडम। हेलो। हाँ सर, मेरे सवाल नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से बात रखी। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज अभी जस्ट मैं बाली में हूँ और मैंने बाली से आप ये कनेक्ट किया, और इवन जो भी आप बोल रहे थे तो वो मैं बाली की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि बाली में जिस तरह से उन्होंने कल्चर को रखा है उसी तरह से हम एजुकेशन में कल्चर को मिला कर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं। हेलो जी। थैंक यू चेतना जी। थैंक यू मैडम। बिफोर वी क्लोज द सेशन, हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और 12:50 से हमारा तो आप लोग इस लिंक पे रह सकते हैं, आप इसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिका, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने सर का धन्यवाद ज्ञापन किया, पर मैं सर का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि सर ने बहुत ही कम समय में हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए द्वितीय सत्र की जगह प्रथम सत्र में ज्वाइन किया और हमारा मार्गदर्शन किया और हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की विभिन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में हमें बताया। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, पूरी डीटीओ टीम की तरफ से और मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत आभार। विनोद जी, एक भाई साहब, आप कान में इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के बाद कुछ पंक्तियां आ रही हैं मेरे मन में। जी जी। कवि ने कहा है कि बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ, कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू पाता हूँ। क्या जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू पाता हूँ। तो जो ये जंगल हमने बना दिया है आज अपने पूरे समाज में, ऐसी मायाजाल बन गया जहाँ संबंधों पर इतना गिरावट आ रही है, जहाँ मूल्यों में इतनी गिरावट आ रही है, जहाँ संबंध के साथ साथ कहीं न कहीं समाज में इतनी ज्यादा मैं कहूँगा कि प्रवृत्तियां आ रही हैं कि आज मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ रहा था तो देख करके बड़ा दुख होता है। आज पत्र सुबह पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मूल्य हमारे समाज के कितने गिर गए हैं कि सब कुछ हो रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि वो बात किसी ने कही कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। हम आज चांद सितारों तक पहुंच गए, हमने अंतरिक्ष को भेज दिया और हम चंद्रयान सूर्ययान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इंसानियत का तकाजा, मनुष्य का बनने का जो भाव है, जिसको ग्रंथ साहिब ने भी कहा कि मनुक भव, के मनुष्य बनना चाहिए, और मनुर्भव जिसे हमारे वेदों ने कहा, आपने रामचरितमानस से सुंदर उदाहरण दिए, चारों भाइयों के जीवन से सुंदर उदाहरण दिए कि किस तरीके से वो एक तरीके का परिवार के अंदर जो यूनिटी होनी चाहिए उसके बारे में आपने बताया, और परहित सरस धर्म नहीं भाई वाली जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि वो तमाम चीजें भारतीय ज्ञान प्रणाली के सबसे आदर्श वाक्य थे, जहाँ त्याग हर कदम पे देखने को मिलता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जीता कि
हमारे रांका और बांका की कहानी प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध दंपत्ति थे, जब रांका आगे चल रहे थे तो उन्हें स्वर्ण दिखाई दिया, स्वर्ण का कोई आभूषण, तो उन्होंने पांव दबा दिया। तो उनकी पत्नी बांका ने पति को देख लिया और उन्होंने कहा कि अपने पति से कि आप जो है मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो। यानी कि आप ये देखिए कि जिस देश में इतनी बड़ी परंपरा रही हो, जहां राजा शिव ही रहे हो जिन्होंने अपना पूरा मांस जो है वो दे दिया हो उस पक्षी को बचाने में, तो आपने वो तमाम चीजों के उदाहरण लिए, वो तमाम धर्म के 10 लक्षणों की बात करी और आप संकट मोचक बन के भी आए। आपने हमारा पहला सत्र जैसा कि अभी त्रिशला ने बताया वो लिया। हमारे सारे पार्टिसिपेंट बड़े बुद्धिजीवी हैं, सुनीता जी, चांद भारत, चेतना जी ने बाली से अपने विचार रखे, मीनाक्षी महलावत ने बहुत सुंदर प्रश्न किए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप 15-20 मिनट बाद हम द्वितीय सत्र में जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।